السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ أما بعد، والفجر وليال عشر والشفع والوتر فصلی ربک وانحر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں اور اس بابرکت روز میں ہم کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اب میں جو بات کہنے کے لیے آیا ہوں وہ صحیح طریقے سے مجھے بولنے کی اور سب کو سننے کی، سمجھنے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے جمعہ میں قربانی کے بارے میں بیان کیا تھا اور عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں بھی اور عرفہ کا دن کے بارے میں بھی میں بیان کیا تھا۔ دیکھو، پورے سال میں 12 مہینے رہتے ہیں، یہ سب کو معلوم۔ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے بھی 12 مہینے رہتے۔ اب اس میں یہ پورے 12 مہینے پورے روزہ اللہ کے چھے، یہ پورے روزہ اللہ کے چھے، لیکن اس میں ذرے روزہ کو اللہ خاص کر لیتا، اس کے واسطے کو بول کو اس میں بہت بڑی فضیلتیں رکھتا اللہ تعالیٰ ہمنا، لیکن پورے اللہ کے چھے یہ فضیلتہ کئی کو رکھتا اللہ تعالیٰ کئی تو کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہے تو اللہ سے دور ہو گئے کہ یہ فضیلتیں سن کو، یہ بینیفٹس سن کو، یہ فائدے سن کو اللہ کی طرف آتے کو بول کو کون ہے تو اللہ سے بھٹک کے ہے سنو، اللہ کے راستے سے دور ہے سنو کون ہے تو کہ اللہ سے دور کون ہے کیوں لگا۔ اس میں آج میں بھی داخل ہوں، ہم سب داخل ہیں اس میں۔ ہمارے واسطے رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ، ویسا جو ذی الحجہ بھی، ذی الحجہ کے بارے میں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ راضی کو بول کے بولے۔ جب صحابہ بھیٹ کو ہے، صحابہ عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی زیادہ جنگ کرتے نا، جہاد سے بھی زیادہ کیا کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہاں جہاد سے بھی زیادہ۔ پھر کو بعد میں اور ایک جملہ فرمائے، ہاں جہاد میں ان اپنا مال کو کھپا دینا، اپنی جان کو لٹا دینا، اس کا جان بھی چلے جانا، اس کا مال بھی، وہ جنگ میں وہ جہاد میں چلے جانا، تو جب وہ افضل، وہ شہید ہونا افضل کو بول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، نہیں تو یہ 10 دن بہت زیادہ فضیلت کو بول کو بولے۔ یہ فضیلت کے بارے میں قرآن قسم اٹھاتا ہے۔ دیکھو، قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ کی زبان سے بولے ہوئی باتیں، اللہ کی کلام قرآن مجید۔ اب ایک آدمی معمول سا انسان کون تو، معمول آدمی کون تو کیا تو بات بولا تو اس کی بات کو وہ تو ویلیو نہیں رہتا، وہ ایک بڑا آفیسر ہو کر رکھو، ایک بڑا عہدے میں رہا سن بولا تو اس کی بات کو ویلیو رہتی، اس کو بات کو پورے لوگ مانتے۔ اب معمول سی کون کے جنا کوس کے ایک بات بولا تو ہمیں سنتے نہیں، ان بولا تو ہمیں سننا کیا ہوگا بول کو،
वो कौन सा तो बड़ा ऑफिसर है, बड़ा हुक्मरान कौन, तो आपको बोला तो उसकी बात को हमें मानते ना। वैसा छे या अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक, अकेला तने तनहा, उसका सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका शरीक कोई नहीं, ना वो किसी का बेटा है ना वो किसी का बाप है, वो हर ऐब से पाक है, पूरी कायनात को अकेला बनाया अल्लाह ताला। वैसा का वो अल्लाह खुद बताता है। अल्लाह मामूल होने एक बात बोला तो भी उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। कई के तो बोलने वाला पूरी कायनात को बनाया सुन रब खुदा हमारा अल्लाह होने से उसकी बात की अहमियत बहुत ज्यादा। लेकिन ये अहमियत उन लोगों को मालूम होती जिन्होंने अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह को नहीं मानता सुने, अल्लाह के बातों का इंपॉर्टेंस मालूम नहीं, उसे उसकी अहमियत मालूम नहीं। अल्लाह के बातों को भी मामूल इंसान बातों को मामूल एक ही समझता, कौन है तो अल्लाह से दूर है कि वो अल्लाह के बंदे है तो वो लगा को मालूम अल्लाह की बात अलग है, दुनिया के इंसान की बात अलग है। अब इसमें अल्लाह ताला मामूल होने बोला तो भी हो जाता सब, लेकिन अल्लाह ताला कसम उठा के बताता है जिलहिज्जा के बारे में। कहे तो वो कितनी बड़ी फजीलत होकर रहती, सोचो। अल्लाह खुद एक बात बोला तो भी बसे, लेकिन खुद अल्लाह कसम उठाता है कोसो तो चीज के ऊपर, कोसो तो बारे में कसम उठाए तो उसका यकीन बहुत ज्यादा हो जाता, पक्का हो जाता। वैसा का कसम उठाने वाला खुद अल्लाह हो या तो अभी कितना ज्यादा होगा रहता, बोलो सोचो जरा। अल्लाह खुद कसम उठाता है, वल फज्र कसम है फजर की, वलयालिन अश्र कसम है 10 रातों की, वशफी वल वत्र और कसम है चुस्त और ताक की। 3 कसम है कुरान मजीद में, सूरतुल फजर में अल्लाह ताला पहली 3 आयतों में कसम उठाता है। कसम उठाने वाला खुद अल्लाह है तो उसकी वैल्यू अभी कितना ज्यादा होना। अल्लाह मामूल से बोले तो भी हो जाता, लेकिन अल्लाह कसम उठा को बोलता है वो बात। कसम है फजर की, कौन सी फजर का, कहते जिलहिज्जा के 10वें दिन, ईद के दिन सुबह की फजर की कसम उठाता है। दूसरा 10 रातों की, कौन से 10 रातें, ये जिलहिज्जा के पहले 10 रातें, ये पूरे ये 10 रातों में नेक अमल, नेक काम, नफली इबादतें ज्यादा से ज्यादा करना हमें। जब एक जर्रा बराबर हमें नाखून के बराबर नेकी करे तो पहाड़ को तने की लिखता अल्लाह, वैसे ही हमें इतना गुनाह करे तो भी पहाड़ को गुनाह लिखता अल्लाह ताला। इससे बचना, गुनाहों से हमें इन दिनों में, खास तौर पर इन दिनों में बचना, हमें बच को अल्लाह की इबादत कर लेना, बड़ी इबादत कर लेना, अल्लाह को राजी कर लेना। और जुफ्त की कसम उठाया। जुफ्त के तो इवन नंबर्स के तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये ताक के तो 1, 3, 5, 7, 9, वो ये पूरे 8 नंबर सा, ये दोने की कई कसम उठाया करके तो इसमें अब हम ना ताक का 9वें रोज, जिलहिज्जा का 9वें रोज कई कसम उठाया। ताक में 9वें का 9 आता, 9 नंबर आता ताक में, 8 नंबर्स में 9वें का रोज का कसम कई को उठाया करके तो अरफात का दिन होता वो रोज, योम अरफा। आज योम अरफा का दिन है, आज योम अरफा का दिन, इस दिन का कसम उठाया। बाद में ताक कया अल्लाह ताला। अब 10वें दिन जुफ्त कया, 10वें दिन गए तो ईद के दिन, जिलहिज्जा के 10वें दिन, वो दिन की कसम उठाया। कई को कहते वो दिन है अल्लाह बोला को बोल को उसके हुक्म के ऊपर हमें अमल कर को कुर्बानी करते होने सी, इनकी कसम उठाया। कहते अब कितना फजीलत है ये महीना, बोलो। फिर को अरफात, ये 10 दिनों में कसरत से रोजा रखना। कौन है तो 10 दिन हमें नहीं रह सकते कर लेते कि योम अरफा, अरफात के दिन का रोजा रखना। इसमें अरफात का दिन आज है, आज हम ना अरफात का दिन है आज। मैं पिछले जुम्मा ऑलरेडी आपको इसकी फजीलत पूरे बताया था, और रोजा रखने के लिए भी। इसमें हम सबकी अम्मा जान अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने योम अरफा का एक रोजा रखता है उसके 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा
हज के मौके में रोजा रखे यौम अरफा का, कमजोर हो गए, बीमार हो गए, वो टाइम पर अरब का धूप है, मामूल धूप नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी अरब में, वो टाइम पर अब है ना देश है क्या भी नहीं है वहां मक्के के अंदर। आज हमने ऐसा लको जरा आराम रहता, लेकिन इससे पहले जमाने में ऐसा नहीं है। तो उनके भांजा अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मी आयशा के भांजा, उन्होंने बोले क्या कहो ये नफिल रोजा ना, फर्ज क्या भी नहीं ना, तुम्हें कई को रोजा रखते हैं, रोजा खोल डालो तुम्हें को बोलते। जब अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुनी, यौम अरफा का एक रोजा 2 सालों का कफारा है, 2 सालों की गुनाह माफ कर देते हैं। मैं कैसे छोड़ डालना, इतना बड़ी फजीलत है इस टाइम, मैं कैसे छोड़ डालना को बोले। लेकिन आज उलमा बोलते हैं हज को गए टेम्पो हमें यौम अरफा का रोजा रखो, कमजोर हो जाते को बोल कर ले, तो हज को गए सुना कोई वो लगा रोजा छोड़ सकते को बोल को बोले उलमा। कौन है तो हज को गए कि वो लगा को, हमना नहीं, हमें हज में नहीं गए, हमारे वास्ते नहीं। कौन है तो हज में गए कि वो लगा कमजोर होते को बोल को, हमें हज के कामा नहीं कर सकते, कर ले को कमजोर हो जाते कर ले, तो वो लगा हज में गए सुनो यौम अरफा के रोज रोजा नहीं रहते भी क्या भी होता नहीं को बोल को उलमा बोलते हैं। वो हमारे जैसे वाले हज को नहीं गए तो यौम अरफा का रोजा रहना बहुत 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 बड़ी फजीलत है। 2 साल की गुनाह माफ होते तो इससे मुराद है सगीरा गुना, छोटे गुना हमारे, बड़े कबीरा गुना माफ नहीं होते, कबीरा गुना बगैर तौबा के माफ नहीं होते। आज अभी हमारे हाथ में टाइम है, ये यौम अरफा का दिन है, आज ये यौम अरफा का दिन। कौन है तो इतने रोज अल्लाह की इबादत कर ले को, नफली इबादत कर ले को, कुरान पढ़ की तिलावत कर ले को, कुरान पढ़ को, नफली नमाजा पढ़ ले को, अल्लाह का जिक्र ज्यादा कर ले को, अल्लाह को राजी कर ले कि अल्लाह को मालूम। कौन है तो अल्लाह से बख्शिश मांगे कि अल्लाह बख्श दिया कि अल्लाह जानता। हमारे हाथ में अभी जर्रा मौका है भाई, आज यौम अरफा हमें ज्यादा से ज्यादा तिलावत कर को, मगफिरत की दुआ मांगना। सबसे पहले या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें दिल से तौबा कर लेते हैं बोल को मगफिरत मांगना। दूसरी सबसे पहले आखिरत को फोकस करना, या अल्लाह हमारी आखिरत को अच्छा बना दे, हम ना आखिरत में कामयाब कर दे बोल को ये दुआ मांग लेना। हमारे पास अभी टाइम है। और एक बात, कुर्बानी यौम अरफा का हो गया, अब कुर्बानी के बारे में आएंगे। कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसके बारे में एक बार सहाबा पूरे बैठ को है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो जब सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या है को बोल को पूछे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुर्बानी तुम्हारे और मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है को बोल को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा कुर्बानी का वाक्य पूरा मैं ऑलरेडी पिछले जुम्मा आपके सामने बयान कर दिया था। और सहाबा फिर पूछे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है हमें कुर्बानी करते, लेकिन कुर्बानी की फजीलत क्या होगी बताओ को बोल को पूछे सहाबा। है तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि हर एक जानवर के हर एक बाल के अंदर एक एक नेकी रखे अल्लाह ताला। कितने बाल रहते बोले जानवर के, आज टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गई जी, लेकिन जानवर के बाल कितने हैं कि गिन सकती नहीं, गिनने की मिशन को सा भी आया नहीं। उतनी बड़ी नेके कितने हैं तो बाला ज्यादा रहते कि जानवर के ऊपर है, उतने नेके ज्यादा हम आज। और उसमें से एक सहाबी उठ को बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कने 19 जानवर है, तो फिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हाँ 19 जानवर के हर एक बाल के बदले में भी एक नेकी को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुर्बानी असल किसके ऊपर फर्ज होती, किसके पास 52.5 तोला 52.5 चांदी, 52.5 तोला चांदी 52.5 चांदी है कि तोला। दूसरा 7.5 तोला सुन्ना किसके पास है कि उन लोगों के ऊपर फर्ज हो जाता कुर्बानी। नहीं 7.5 तोला सुन्ना को हमें कैश अमाउंट कितना है तो आता कि लगभग तकरीबन अब 70,000 आता है। किसका ने है तो सबा कल ईद के दिन जिलहिज्जा के 10वें दिन से लेको 12
कि असर से पहले तक किसका नहीं है तो इतना अमाउंट रहता है कि 70,000 है तो 7.5 तोला का सुन्ना का अमाउंट कहता है तो होता कि उतना अमाउंट कैश हमारे पास रहा तो भी 52.5 तोला 52.5 है तोला चांदी का रकम हमारे पास रहता है तो भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती। और एक बात, किसके पास है तो कौन है तो तिजारत करता की तिजारत की माल भी इसके अंदर दाखिल है। उन हदी बेचा नहीं, बेचने की नीयत से लाया, वो पूरा हिसाब डालना, फिर को वो पूरा हिसाब डाले तो उधर 70,000 का हो गया तो इसको ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। दूसरा, 3-3 4-4 गाड़ियां है, उसमें इन बरतने का एक गाड़ी कर लो, कम के गाड़ियां का पूरा हिस्सा डाल कर फिर को उधर डालना कुर्बानी को। हमें क्या क्या है तो बरतते की रोज के इसमें वो नहीं सर का नहीं बरते सर का बाजू फेंक को रहते कि वो पूरे हिसाब डालना। अब मसलन घरों में पूरा साल में कोसे सामान है तो हमें बरतते नहीं की वो पूरे भी इकट्ठे करके हिसाब डालना पड़ता, नहीं पूरे साल में एक बार तो भी निकाले तो उसका हिसाब नहीं होता। अब ऐसे लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती। अब वाजिब हो जाने के बाद कौन है तो कुर्बानी नहीं करते तो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े वार्निंग सुनाए। किसके पास है तो कुर्बानी करने का कुर्बानी वाजिब हो गया कि कुर्बानी करने की हैसियत है कि उन कुर्बानी नहीं करा तो उन हमारे ईदगाह के करीब भी ना बैठे। कहते क्या कौन है तो इसके ऊपर वाजिब होने के बावजूद उन्हें कुर्बानी नहीं करा कि उन क्या मुंह रखले को हमारे ईदगाह में आको ईद की नमाज पढ़ता उन असल हमारी ईदगाह के नजदीक भी आना नको वो बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। कौन है तो फर्ज होने के बावजूद वाजिब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते कि उन लोगों को। अबे कुर्बानी की फजीलत देखो। अबे कुर्बानी पहले करना या ईद की नमाज पहले पढ़ना। सूरह कौसर की दूसरी आयत फसल्ली रब्बी का वनहर कहे तो सबसे पहले हमें ईद की नमाज पढ़ना और उसके बाद कुर्बानी करना। हमें इसमें 2 मसले बयान हो गए इस एक आयत में। अबे खेड़े गांव में कहा है तो जुम्मे की नमाज ईद की नमाज नहीं होती थी, वहां वो लगा फजर के बाद कुर्बानी कर सकते, लेकिन शहरों में जहां ईद की नमाज होती जुम्मे की नमाज होती वहां क्या कैसा करते तो अबे एक बड़ा गांव है, बड़ा शहर है, सिटी है, एक एक जगह एक एक नमाज की टाइमिंग है कर लो। अब मसलन हमारी गली में बकरीद की नमाज 9 बजे कर लो, दूसरा जरा सामने गली में 7 बजे कर लो, वो सिटी में होकर रहना वह 7 बजे नमाज हो जाने के बाद है या हमारी गली में 9 बजे जमात है, लेकिन 7 बजे के बाद हमें कुर्बानी करे तो हमारी कुर्बानी हो जाती, हमारी कुर्बानी हो जाती। कहीं के तो इस शहर में सिटी में गांव में 7 बजे पहले नमाज हो गई, हमारा मोहल्ले में हुई नहीं वक्ता ऐसा कुर्बानी हो जाती। वो चे कहा भी हुई नहीं नमाज है पहले हमें सिटी में कुर्बानी कर डाले करते तो कुर्बानी होती नहीं वहां। और कुर्बानी के फजीलत के बारे में मैं चंद आपके सामने बयान करूंगा। इसमें अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हदीसा बयान करता। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे सहाबा मैं तुम्हें तो नेकी कर लेते रहते छोटी मोटी नेकी, लेकिन ईद के दिन सबसे अफजल नेकी क्या होगी मैं तुम्हें बताना क्या जो अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब बहुत ज्यादा प्यार अल्लाह को वो नेकी सी वो नेकी क्या होगी बताना क्या को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं। सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताओ क्या वो, तो बोल को पूछे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कुर्बानी का खून बहाना, जानवर का खून बहाना अल्लाह को ज्यादा महबूब। यौम नहर के दिन, यौम नहर के तो सबा ईद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन, जिलहिज्जा के 10वें दिन जानवर को ज़बा कर को अल्लाह के नाम के ऊपर है खून बहाना अल्लाह को ज्यादा महबूब। इससे ज्यादा महबूब अल्लाह को कोसा अमल भी नहीं को बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी बात देखो कितने बाला ज्यादा रहे तो उतने ज्यादा नहीं क्या। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुर्बानी करने के बाद उसके क्या क्या है तो हमें नहीं खाते की शर्मगा, नाखून,
नाखून, उसके सींगा, अभी क्या क्या है तो हमें नहीं खाते कि वो सब भी फेंक डालते ना, वो सब भी हमें वेस्ट हो जाते समझते। लेकिन अल्लाह ताला क्या करता गक्के तो वो खून को इधर है, सिंगा को, उसके सिंगा को, उसके नाखुना को, उसके शर्मगा, अभी क्या क्या है तो हमें नहीं खाने की फेंक डालते कि नहीं खाए सर का फेंक डालते कि गोश्त नहीं सर का, वो पूरे बदले में अल्लाह ताला नेकिया दे डालता कयामत के दिन, उसको हाजिर कर डालता हुआ कयामत के दिन हमना वो पूरे कहते क्या। इससे क्या मालूम होता है हमें वेस्ट होने फेंक डालते सो चीजा कुछ है अल्लाह कयामत के दिन लेकर आपको हमना नेकी के बदले में देता है। तो फिर गोश्त अभी कितना अफजल होकर रहता, हमें वो गोश्त को खाते फिर को और लोगों में तकसीम करते, रिश्तेदारों में बांटते, गरीबों में बांटते, अभी कितना फजीलत होकर रहता उसका, अभी कितना वैल्यू ज्यादा होकर रहता। अब हमें वो जानवर के वेस्टेज को फेंक डालते, अंतेड़ा वो सब भी फेंक डालते, नाखुना सिंगा सब भी फेंक डालते, हमें खाते नहीं। उसका वैल्यू ये है तो खाने का वैल्यू अभी कितनी होकर रहती हो नहीं, सोचने की बात ही नहीं है। वो बड़ी फजीलत कुर्बानी का, कुर्बानी के बारे में कितना ज्यादा बोले तो भी बहुत कम फजीलत है, कितना ज्यादा बोले तो भी बहुत कम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहे, 10 साल कुर्बानी करे, एक बार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फर्ज नहीं हुई है तो भी मालदारा को कर को बथाना को बोल को 2 कुर्बानियां करते सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्बानियां करते सो, एक अपनी तरफ से खुद उनके तरफ से कर लेते सो, दूसरा अपनी उम्मत के गरीब लोग जिन्होंने कुर्बानी करने की उन लोगों के पास ताकत नहीं रहती, उन लोगों की गरीब लोगों की तरफ से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही करते थे, 10 साल करे थे हमारे लिए। हमें अभी आई भी नहीं, अभी हमारे वास्ते कयामत तक आते सो आखिरी इंसान तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के लिए पहले ही कुर्बानी करते थे, एक अपनी तरफ से दूसरी अपनी उम्मत के गरीब लोगों की तरफ से कुर्बानी करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी हदीस अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों कुर्बानी दिल खुशी से करो, क्या करो दिल खुशी से करो। हमारे कहने 10,000 बक्का पड़ेगा हमना, 15,000 हमारे वेस्ट हो गए जानवर में, इतने लाख वेस्ट हो गया हमना को बोल के ऐसा बात ना करना, खुशी सी दिल की खुशी सी करना। अल्लाह बोला भाई हमना करो को बोल को अब करना चोत्ता छे, अल्लाह बोला होने से करते हैं, नहीं तो हमें करते नहीं सो। कौन की एक जना बोला तो करते क्या हमें, हमारा खुदा हमना पैदा करे सो मालिक खालिक राजिक हमारा रब बोलता है होने से हमें कुर्बानी करते हैं, नहीं तो हमें कहीं करते होने से कुर्बानी करता सुने दिल की खुशी से करो को बोल को बोलते हैं। और एक बात वो हदीस में है दिल की खुशी से करो, जब हमें किबला की तरफ फिर को जानवर को ज़बा करते हैं तो उसका खून का कतरा जमीन में पड़ने से पहले पहले अल्लाह ताला कुर्बानी को कबूल फरमा देता, और अल्लाह को कितना खून गया तो उतना ज्यादा राजी अल्लाह को, वो जानवर के अंदर है कितना खून बाहर गया तो उतना राजी अल्लाह को, उतना महबूब अल्लाह को। और एक बात ये हदीस में हबीब भी है, उसके क्या क्या है तो हमें नहीं खाए सर का वेस्ट होने फेंक डालते की, सिंगा नाखुना ये क्या क्या है तो है कि, शर्मगा ये पूरे क्या क्या है तो है कि, ये पूरे अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता ये पूरे ले जाको इन्हें इसे चारा खिलाया सो पानी पिलाया सो, ये पूरे ये जानवर है पेशाब कराया सो पैखाना भेटा सो, ये पैखाना पेशाब भेटे शब्बो जानवर को हमें मारे जाने उसकी खिदमत करने को हमें जरा कर लेना, उसके ऊपर गालियां देने को उसे मार को पीट को ये करे निसर का कर ले तो उसके लिए क्या फजीलत करने का बात है। देखो उन जानवर को मारे नहीं सर का, ये पेशाब दे पैखाना कर को वो इंसान को बहुत तकलीफ दिया, ये पूरा चारा पानी खिलाया से पूरा ये पूरे क्या क्या है तो वेस्टेज है कि ये खून चल जाता है हमें खाते नहीं, सिंगा हमें खाते नहीं, शर्मगा हमें खाते नहीं, नाखून हमें खाते नहीं, अभी अंतरिया नहीं खाते हमें फेंक डालते, ये पूरे फरिश्ते को हुक्म देता अल्लाह ताला ये सब भी जमा कर फ्रीज कर डालना, फ्रीज वो अभी फ्रीज कर डालना, फ्रीज कर डाल को अल्लाह ताला फरमाता है कयामत के दिन इसके नामे आमाल कबे तो नेकिया इसके कम हो जाते कि कयामत के दिन वो नेकिया पूरे लेकर फ्रीज करे से नेकिया क्या क्या है तो है कि वो फ्रीज करे से नेकिया पूरे लेके आको वो पूरे इसके इसमें लिख डाल को बोल को अल्लाह ताला बोलते वो नेकिया पूरे इसके इसमें डाल को बोल को बोलता अल्लाह ताला। उस दिन
इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। उस दिन ना मालूम कितने लोगों को कितनी नेकियों की कमी है, पता नहीं हमना। उस दिन हमना अल्लाह ताला पहले जो हमें कुर्बानी करेगा बोल को, हमें ये सब भी वेस्ट हो गया, हमें अंतड़ा ये सिंगा ये पूरे फेंक डाले को बोल को समझते हैं ना, ये पूरे अल्लाह ताला फ्रीज कर रहा को कयामत के दिन रख डालता, कयामत के दिन हमारे नामे अमाल में लिख डालता वो पूरे लेखा को, जब हमने जन्नत में जाने का एक जरिया बनता, हमना हमारे नेकी का वजन बढ़ जाता। जब कहीं के तो हमने मालूम नहीं वो लेकर फ्रीज हुए सो वो लेने का, तो अल्लाह ताला इसमें डाल डालो को बोल बोलता, जब डाल डाले तो हमारी नेकी का बड़ा ज्यादा हो जाता, भारी हो जाता। जब ये एक मौका है होने सी कुर्बानी करना। अब इसमें कुर्बानी के बारे में और चंद मसाइल क्या कहते, तो अल्लाह को कितना खून गया तो उतना राजी वो जानवर के अंदर, जानवर के सामने कभी छुरी तेज नहीं करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स जानवर के सामने छुरी को तेज करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्सा हुए उस आदमी के ऊपर, गुस्सा होकर फरमाए इसे 2 मौता देना नको, तू 2 मौता तू देना नको। एक इसे कुर्बान करता है, जबा करता है, फिर को दूसरा उसके सामने तू छुरी को तेज करता है, क्या को बोल को हल्ला होने सी छुरी को तेज करे जाने। छुरी को जानवर के सामने तेज करने से उसका खून कम हो जाता। ये साइंटिफिक भी प्रूफ है, प्रूव करे साइंटिस्ट का भी ये प्रूव करे, जानवर के सामने हमें छुरी को तेज करे तो खून उसका अंदर है सो कम हो जाता, बाहर को आता नहीं ज्यादा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां होती। दूसरी बात, जानवर को हमें काटे स्टम्पो हाथ पांव बांध डालते ना, उसे काटे बसता उसे छोड़ डालना, उसके हाथ पांव और बंद डालते ना, हमें वो छोड़ डालना रस्सा। बहुत लोग ये गलती करते, बांध को उसका छोड़ डालते, उन काटता सुने छोड़ो ना कुछ, ये पूरा गलीज हो जाता, वोट मार लेता, ये हो जाता, वो पूरा खून हो जाता, ज्यादा होता, गलीज हो जाता, वो बोलता काटता सुन। लेकिन उसे अल्लाह का वास्ता देखो, अल्लाह के खौफ से डराओ, अल्लाह से डराओ उसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले उसका कितना खून बाहर गया तो उतना अच्छा अल्लाह को राजी को बोल को, उन वैसे बंडल को रहा तो अंदर फ्रीज हो जाकर रहता खून, पूरा खून बाहर का आता नहीं, उन कितना है तो मार ले को ये करता कि पूरा खून बाहर को आ जाता उसमें से। होने से हमें बंद डाल देना, पहले जबा करने के बाद फौरन उसके हाथ पांव खोल डालना, रस्सा खोल डाले तो जब उसका खून पूरा बाहर को चले जाता, ये गलती नहीं करना हमें। दूसरा, क्या क्या जानवर, अल्लाह से पूछना हमें क्या क्या जानवर जायज है हमें कुर्बानी करने में। बकरा, बकरी, इसमें गाय, बैल, भैंस, ऊंट, दुम्बा, भेड़, ये सब भी कुर्बानी के अंदर जायज। इसमें उम्र क्या, ऊंटनी का कम से कम 5 साल होना, ऊंटनी का उम्र कम से कम 5 साल, 5 साल से कम है तो ऊंटनी की कुर्बानी नहीं होती। और गाय, भैंस, बैल की कितने साल, 2 साल, 2 साल हो को रहना उसे, नहीं तो कुर्बानी होती नहीं। बकरा, बकरी, इधर भेड़ क्या, दुम्बा क्या, 1 साल, 1 साल कंफर्म होने, 1 साल रहना, वो 1 साल से कम है तो होता नहीं। इसमें दुम्बा में एक है, दुम्बे के अंदर क्या होगा कहते हो, उन 6 महीने का हो को बहुत मोटा ताजा है अकल लो, उसे साल वाले दुम्बे में ले जाकर रखे तो मालूम हुए जानी, वो भी यदि एक ही छाना तो उतना मोटा उतना ताकतवर रहा कर लो। जब दुम्बा जायज है, बकरा बकरी नहीं, दुम्बा खाली दुम्बा में छे अल्लाह दिया सो गुंजाइश, दुम्बा 6 महीने का दुम्बा साल के उसमें ले जाकर खड़ा करे तो हमें उसमें इसमें फर्क नहीं मालूम होना, जो भी एक साल है तो वो भी हो जाती कुर्बानी, उसमें भी हो जाती। अब ये जानवरों की कुर्बानी जायज है, इनके सालों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बता डाले कितने साल में होता होगा बोल को। और इसमें हमें दिल खुशी से करना। बहुत सारे गैर मुस्लिमा, और बहुत अफसोस के साथ कहता हूं हमारे थोड़े मुसलमान भाइया जिनके दिलों में ईमान की कमी है, वो लोग भी आज हिंदुवासी गैर मुस्लिमवासी मिलको बोलते हैं क्या को इतने इतने पैसे रखो तुम्हें जानवरों को कुर्बानी करने से भी, वो जानवर को मरने मारना कहीं वो क्या कि गरीबा को दिए तो ज्यादा फायदा होता ना को बोल को बोलते हिंदुआ गैर मुस्लिमा। बहुत अफसोस के साथ कहता हूं हमारे मुसलमान भैया जिनके दिलों में ईमान की कमी है, वो लोग भी आज ये कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं ये बात, गरीबों को दिए जाना, कहीं को तब हजारों अरब को खरीदना जानवर को, उसे जबा करना, कहीं को मामूल होने भी तुम्हें खाते ना, मामूल टेम्पो भी, अब ये कहीं को इतने ज्यादा पैसे रखो काटना को बोलते हैं। पहली बात, ये बात हम ना कौन भी आदमी बोले नहीं आपको, पहली बात कौन सा तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, मिनिस्टर बोला तो हमें करते नहीं सो,
हमने क्या जरूरत है, उनको ये बोला तो हमें क्या करना, करे तो करते ना तो नहीं। पहली बात इसकी दलील क्या हो तो सबसे पहले अल्लाह बोले हम ना करोगे को होने से हमें करते हैं, नहीं तो हमें कहीं क्यों करते, हमें नहीं करते। अल्लाह बोला होने से हमें करते हैं वो कुर्बानी। और एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहले बोला था मैं, अल्लाह को यौम नहर के दिन कहे तो जिलहिज्जा के 10वें दिन कहे तो सबा ईद उल अजहा के दिन है, खून जानवर का खून बहाने से भी ज्यादा महबूब अमल कौन सा भी नहीं को बोल को बोले, होने से हमें करते हैं। अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज्यादा महबूब अमल प्यार अमल कौन सा भी नहीं है, होने से हमें करते हैं, नहीं तो हमें कहीं क्यों करते। ये अल्लाह बोला, अल्लाह को ज्यादा महबूब को बोल को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, होने से हमें जानवर को कुर्बान करते हैं, कौन की ईद बोला को बोल को करना नहीं। ये लगा ये बात शादी में लाखों करोड़ों करते खर्चा, बेकार खर्चा, फजूल खर्चा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो बोले, लेकिन आज जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल हो गया। कटनवा को बोल को, जहेज को बोल को, वो लाना ये लाना, वो करना ये करना को बोल को। अब ऐसा कि फजूल खर्चे के टेम्पो लगा के याद आते नहीं गरीबा, ऐसा फजूल खर्चे टेम्पो याद आते नहीं गरीबा, गरीबा को बांटे जाना हमें को बोल को टेम्पो याद आते नहीं। हाँ लाखों के गाड़िया मोले टेम्पो कारा मोले टेम्पो याद आते नहीं, गरीबा को मदद करे जाना को बोल को। कब है तो अल्लाह के रास्ते में हमें कुर्बानी करते कि अल्लाह के हुक्म से, वो टेम्पो माने एतराज आ जाते हैं लगा को, कहीं को तुम्हें इतने हजारों को ये करते हैं, जानवर को ये करते हैं, सो वो क्या कि गरीबा को दिए जाना, गरीबा की मदद करे जाना को बोल को वो टेम्पो बोलते रहते। ये बहुत बड़ी गलती, ये आज हमारे अंदर भी है। और एक आज अरफात का दिन है, आज अरफात का दिन का रोजा, एक रोजा रहे तो आज 2 साल के गुनाह माफ होते, सगीरा गुना, एक पिछले साल का एक अगले साल का गुना, 2 साल का गुना। इससे मुराद है कहा है तो हदीस में गुने माफ होते, इतने साल के माफ होते गए, तो इससे मुराद है सगीरा होते, कबीरा नहीं होता। सगीरा छोटे छोटे गुना माफ होते, कबीरा गुना बगैर तौबा के माफ नहीं होते, तौबा से ही माफ होते। आज कौन है तो रोजा रहे कि वो अल्लाह के ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अल्लाह को राजी कर लेना। यौम अरफा का दिन है, ये जिलहिज्जा के 10 दिनों में ज्यादा फजीलत है। 9वें दिन कई को कहते तो शैतान ने यौम अरफा का रोज चुको अभी इतना जलील कभी नहीं होता। यौम अरफात का दिन बहुत ज्यादा रोता शैतान है, कई को रोता कहते तो कौन है तू हज को गई की, वो लगा अरफात के मैदान कने, यौम अरफा के रोजे पूरे अल्लाह के दरबार कने, अरफात के मैदान में अल्लाह से बख्शिश मांगते। उस दिन अल्लाह ताला फरमाता है बारिश के कितने हैं तो कतरे रहते कि उतने गुने तुम्हें लेकर आओ, मैं तुम्हारे सारे गुने माफ कर डाल को। तुम्हें अब बीच हमें माँ के पेट से पैदा हुए तो कितना मासूम होते, गुनों से पाक, वही सब पाक कर रहा होता अल्लाह ताला। इसके वजह से शैतान जलील हो जाता, शैतान बहुत रोता, मगफिरतें देखो कई कहता अल्लाह ताला बहुत लोगों की मगफिरतें कर रहा होता। वह कौन कौन है तो हज को जाको अरफात के मैदान में यौम अरफा के रोजे दुआ कर लेते, भिड़ते कि रोते रहते कि अपनी मगफिरत की भीख मांगते रहते कि अल्लाह से, वो अल्लाह ताला सबकी मगफिरत कर रहा होता। उन रोता शैतान है, शैतान कई को रोता करते तो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करोगे इस वो शैतान नहीं कर तुम कया, उसे मट्टी से पैदा करा, मुझे आग से पैदा करा, आग मई पावरफुल, मट्टी पावर क्या भी नहीं को बोले अकड़ गया। जब अल्लाह उसे निकाल डाला तुम क्या कहा आदम इस किसके वजह से है तो मुझे निकाल डाला कि इसके पूरे नस्ल को मैं जहन्नम में लेकर जाता हूँ, वो बोल को बोला उन्हें। अब वो यौम अरफात के रोजे, वाह यौम अरफात के दिन अरफात के मैदान में अब कितने लोगों की बख्शिश हो जाती है, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते जिन लोगों को अल्लाह वहीं पे मौत दे डालता, तो क्या है डायरेक्ट जन्नत। कहीं के तो अल्लाह बोले ना अब बीच माँ के पेट से निकले कायनात साफ कर डालता हूँ, गुनाह माफ कर डालता हूँ, क्या फिर शैतान का मिशन फेल हो गया ना, उन क्या बोले जहन्नम में लेकर जाते लगा को क्या, लेकिन उन जन्नत में चले जाता ना, वो कौन कौन है तो मर गया कि किसकी बख्शिश होगी की। दूसरी बात वहां को जाकर के बाद कौन है तो गुनाह से पाक रह को अल्लाह की हुक्मों के ऊपर रहता कि गुनाह करे नहीं सकता कि उसकी मौत आई तो भी उन जन्नत में चले जाता। या भी शैतान फेल हो गया ना, शैतान फेल हो गया, शैतान लेके चल जाता मैं जहन्नम में गया, लेकिन उन जन्नत में चले जाता। होने से यौम अरफात का दिन बहुत ज्यादा शैतान रोता, बहुत ज्यादा जलील हो जाता। वो आज का दिन या हमारे अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत, नफिल इबादतें में हमारे ज्यादा कसरत से ज्यादा बढ़ा डालना, हमें नफिल इबादत। और दूसरी बात अल्लाह की मगफिरत मांगना। और एक बहुत बड़ी बात क्या हो तो आखिरत के बारे में हमें दुआ करना अल्लाह से, या अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी बना दो,
हमारी मौत अच्छी मौत दे, हमना बुरी मौत से हमारी हिफाजत फरमा, हमना जहन्नम की आग से हिफाजत फरमा, जहन्नम की अजाब से हिफाजत फरमा, हमना आखिरत में कामयाब कर दे। अल्लाह को बोल को हमें भीख मांग लेना। अल्लाह को बहुत ज्यादा राजी आज का दिन और कल का दिन। कल कुर्बानी करते हैं सुना को बहुत राजी, अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है। वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा को कुर्बान करोगे कष्टम को, अल्लाह से पूछे नहीं, ये मासूम बच्चा मैं कहीं करना, अल्लाह को बोल को पूछे नहीं, फौरन उठे छुरी लेके करवाने शुरू कर दिए भी। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल कर दिया अभी अल्लाह ताला। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत आज हमें करते हुए उनकी सुन्नत को जिंदा करने के वास्ते करते सुनो कौन कौन है तो है कि अब क्या क्या है तो बात बोलो उनकी, वो पूरे जरा सामने रखो, क्या क्या है तो हमारी सी गलतियां होती कि वो गलतियां नहीं हुई सर का देख ले को, दिल की खुशी के साथ कुर्बानी करना, हमें दिल की खुशी के साथ कुर्बानी करना, करेंगे ना भाई? अल्लाह ताला कहने से सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।